Assalamualaikum, dear all students of class 7. This is your teacher Miss Tahniyat, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. As you all know, I teach you English A. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately, by unfavorable condition did not allow us to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without any break. So welcome back to the online learning. As you all know that this is your English A book, which is Oxford Reading Circle 2nd edition. So take out your books and open page number 68. In our last session we have completed our explanation till here, and we have understood the explanation of this unit, My Big Brother. Now I am giving you a short review about the previous explanation, that there were two brothers. The elder one was very studious and the younger one was not so studious. He likes to spend all his time in other activities, while the younger one was always seated with open book, and he was 3 grades ahead of him. That's why he scolds every time to his younger brother by fulfilling the right of seniority. At once, in the final exam, the younger brother failed in his exams, by which only 2 years difference was left behind them, through which the younger brother taunts him every time. One day, the elder one said, now what he said? He said, I see you have passed and you are first in your class, and you have got stuck up about it. But my dear brother, even great men live to regret their pride. And who are you compared to them? A man can commit any sin he wants. Now come on page number 69. But he would better not be proud, nor give himself airs. You have just been promoted 1 grade and your head's turned by it. Understand this. You didn't pass through your own efforts by just stumbled on it by luck. फिर बड़ा भाई जो है उससे कहता है कि तुम जो हो वो 1 ग्रेड मतलब प्रमोट हो चुके हो अपनी क्लास में फर्स्ट आते हुए, और तुम इसी बात पे अटक गए हो. लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक कि एक जो बादशाह होता है उसका गुरूर भी किसी ना किसी दिन टूट जाता है, और तुम इस गुरूर में रहकर ज़रूर पछताओगे. और गलती हर इंसान से हो जाती है, क्योंकि वो फेल हो चुका था अपने फाइनल एग्जाम्स में. इस वजह से वो ये कहता है कि अ मैन कैन कमिट एनी सिन ही वांट्स बट ही वुड बेटर नॉट बी प्राउड. लेकिन एक इंसान को कभी भी गुरूर में नहीं आना चाहिए और कभी भी हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए. नॉट गिव हिमसेल्फ एयर्स. यू हैव जस्ट बीन प्रमोटेड 1 grade and your head's turned by it. Understand this, you didn't pass through your own effort but just stumbled on it by luck. और वो ये कहता है कि ये ग्रेड तुमने अपनी मेहनत से, लगन से, जद्दोजहद और कोशिश से पास नहीं किया है, लेकिन तुम बाय लक इसमें क्लियर हो गए हो. Don't assume that because I failed I am stupid and you are smart. तुम ये मत सोचो क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ तो तुम अपने आप को स्मार्ट और मुझे बेवकूफ़ मत समझो. When you reach my class, you will have to bite into algebra and geometry and study English history.
It's not easy to memorize these kings' names. There were 8 Henrys. Do you think it's easy to remember all the things that happened in each Henry's time? If you write Henry VIII instead of Henry VII, you get a 0. There were dozens of James, dozens of Williams and scores of Charles. You get dizzy with them. और वो अपने ग्रेड की, अपनी क्लास की, अपने लेवल की जो है वो स्टडीज़ के बारे में उसको एक्सप्लेन करता हुआ बताता है कि जब तुम मेरे ग्रेड तक पहुंचोगे तो तुम फंस जाओगे अलजेब्रा, ज्योमेट्री में, इंग्लिश, हिस्ट्री में, और यहाँ तक कि उस ग्रेड में आसान नहीं है कुछ भी याद रखना। वहाँ उस ग्रेड में जिस लेवल पर मैं हूँ वहाँ पर बहुत सारे बादशाहों के नाम जो है याद करने पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हेनरीज होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ। डू यू थिंक इट इज़ ईजी टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स दैट हैपेंस इन ईच हेनरीज टाइम? मतलब कि जो 8 जो है अदवार जो दौर गुजरे हैं उन सब की हिस्ट्रीज को याद रखना कोई आसान बात नहीं है। इफ़ यू राइट Henry VIII इंस्टेड ऑफ Henry VII यू गेट अ 0। और अगर तुम अपनी छोटी सी गलती की वजह से तुमने 8 की जगह 7 या 7 की जगह 8 लिख दिया तो तुम्हें 0 मार्क्स, मतलब कि यू विल बी कंसिडर अ फेल। There were dozens of James, dozens of Williams and scores of Charles. You get dizzy with them. मतलब वो ये उसको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि यहाँ पर दर्जनों किस्म के जो है वो जेम्स हैं, दर्जनों किस्म के विलियम्स हैं और चार्ल्स हैं। तुम उसमें फंस के रह जाओगे उस स्टडीज में। Those poor fellows didn't have names enough to go around. If anybody had asked me, I could have reeled off thousands of names. And as for geometry, well, God help you. If you write ACB instead of ABC, your whole answer is marked wrong. और यहाँ उसको वो ये समझाना चाह रहा है कि कोई भी पुअर फेलो, यहाँ पर जो उसने पुअर फेलो का वर्ड इस्तेमाल किया है वो उन बच्चों के लिए, वो उसने अपने उन फेलोज के लिए इस्तेमाल किया है जो कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। वो ये बताना चाह रहा है उसको कि जो मेरे तमाम पुअर फेलोज थे वो यहाँ तक कि उनको इन सब के नेम्स तक भी पता नहीं होंगे, लेकिन मैं जो हूँ वो आराम से बआसानी हज़ारों के एग्जाम के जो है वो नाम बता सकता हूँ। And as for geometry, well, God help you. If you write ACB instead of ABC, your whole answer is marked wrong. और उसको यहाँ पर बता रहा है कि और इसी तरीके से ज्योमेट्री सब्जेक्ट में भी तुम्हें काफ़ी किस्म की मुश्किलात होंगी। Well, God help you. खैर तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। If you write ACB, अब वो यहाँ पर ये बता रहा है कि ACB ABC की जगह तुम अगर ACB लिख दोगे then your whole answer is marked wrong. अगर कभी तुमने ABC की जगह ACB लिख दिया तो तुम्हारा आंसर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Nobody ever asked those hard-hearted examiners what is the difference after all between ABC and ACB, or why they waste their time torturing the students with it. Does it make any difference if you eat lentils, boiled rice and bread, or boiled rice, lentils and bread? But what do those examiners care? They expect us to learn it word for word, and in the long run, what's the point of learning all this nonsense? If you bring this perpendicular line down on that line, it will be twice the baseline. I ask you, what's the point of that? If it is not twice as long, it's 4 times as long or half as long. What the devil do I care? But you have got to pass, you have got to memorize all this garbage. और वो यहाँ इसको ये समझाना चाह रहा है कि कोई भी कभी जो हार्टेड एग्जामिनर होता है उससे कोई सवाल नहीं करता। वो बस हमसे, जो हमारा एग्जामिनर होता है वो बस ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आंसर दो। अगर तुम वो यहाँ पर जो इसने वर्ड्स यूज करे हैं, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ यू ईट लेंटिल्स, बॉइल्ड राइस एंड ब्रेड, अगर तुम अपने खुराक में दालें और बॉइल्ड राइस और ब्रेड खाओ, या अगर तुम
बॉइल्ड राइस, लेंटिल्स एंड ब्रेड। मतलब यही बात हुई कि जिस तरीके से उसने यहाँ पर ABC और ACB मतलब वर्ड्स को आगे पीछे यूज़ किया था, इसी तरीके से वो ये बात यहाँ पर वापस रिपीट कर रहा है कि अगर तुम दाल और बॉइल्ड राइस और ब्रेड खाओ, या अगर तुम बॉइल्ड राइस, लेंटिल्स और ब्रेड खाओ, तो इसमें क्या फ़र्क है। इस बात से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे एग्जामिनर को किसी बात से फ़र्क पड़ता है तो वो तुम्हारी लर्निंग है, जो कि उसने तुम्हें पढ़ाया है, वो वर्ड टू वर्ड ही उसका आंसर तुमसे देगा। When you get into my class, you will find out what is what. Just because you got a first division this time, you all puffed up. So pay attention to what I say. What if I failed? I am still older than you. I have more experience of the world. वो उसको यहाँ पर ये बात समझाना चाह रहा है कि अगर तुम मुझसे एक ग्रेड जो हो, वो सिर्फ एक ग्रेड अब पीछे रहते हो, तो इसमें इस बात में तुम्हें गुरूर में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो है वो अटेंशन के साथ जो है अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, और जो मैंने कहा है उसके ऊपर तुम्हें अटेंटिव रहना है। और अगर क्या होता है, अगर मैं फेल हो गया हूँ, बट आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बड़ा हूँ। आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, मेरे पास दुनिया का ज़्यादा तजर्बा है तुमसे बनिस्बत तुम्हारे। It was almost time for school, otherwise I don't know what this medley of sermons would have ended. और यहाँ पर जो छोटा भाई है वो ये सोच रहा होता है कि अब जो है स्कूल का वक्त हो गया है और अब उसका भाई चला जाएगा, और इस तरीके से उसका ये मेडले, उसका ये जो इंस्ट्रक्शंस देने का जो उसका ये सेशन है वो अब जाके कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देन इट वाज ईयरली एग्जाम्स अगेन। अब क्या होता है, वापस से जो है ईयरली मतलब फाइनल एग्जाम्स आते हैं। Once more I passed and my brother failed। और एक और बार क्या होता है, वो जो छोटा भाई होता है वो ये कहता है कि मैं पास हो जाता हूँ, और जो है वो बिग ब्रदर फेल हो जाता है। I had not done much work, but my brother had just about killed himself with work. He had grown pale। वो यहाँ पर ये भी बता रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी थी, इतना वर्क हार्ड नहीं किया था जितना मेरे बड़े भाई ने किया था, और वो ये न्यूज़ सुनकर कि वो फेल हो गया है, वो क्या हो गया, ही हैड ग्रोन पेल। मतलब कि फेल मीन्स कि वो ये खबर सुन के उसका रंग पीला पड़ गया। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। अब यहाँ पर वो जो छोटा भाई है वो ये क्या कह रहा है कि मुझे जो है उसके लिए ये बात सुन के, उसको इस तरीके से देख के बुरा लगा। When he heard the results, he broke down and cried। और जब उसने अपना रिजल्ट सुना तो फिर वो टूट गया और रोने लगा। एंड सो डिड आई, माई प्लेजर इन पासिंग वॉज कट बाय हाफ। और इस तरीके से उसको अपने भाई को, बड़े भाई को देख के उसकी खुशी, जो उसके पास होने की खुशी थी, वो आधी हो गई। There was only one grade left between my brother and me। और अब जो है वो सिर्फ एक ग्रेड का उन दोनों के दरमियान डिफरेंस था। The thought crossed my mind that if he failed just once more, I would be at the same level as him, and then what ground would he have for lecturing me? But I violently rejected this unworthy idea। और उस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब सिर्फ मेरे और मेरे भाई के दरमियान सिर्फ एक ग्रेड का जो है वो फर्क रह गया है, और उसके दिमाग में ये बात भी चल रही होती है कि अगर वो एक और बार फेल हो गया तो हम दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे। और इस तरीके से वो उसके पास, उसके बड़े भाई के पास उसको लेक्चर देने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त कंडीशन चल रही होती है, वो उस वक्त इस आइडिया को जो है वो बेकार समझ के रहने देता है। Now my brother had become much gentler towards me। Several times when he found occasion to scold me, he did it without losing his temper। लेकिन इस बार एक और बार फेल होने के बाद उसका भाई जो है वो मोर जेंटलर हो गया था उसकी तरफ। वो जब भी उसको कोई ऐसा मौका देखता था कि जब उसका भाई पढ़ नहीं रहा होता था और जो है वो अपना टाइम जो है वो बेकार वक्त गुजार रहा होता था, तो उसको फौरन डांट देता था। He did it without losing his temper। Perhaps he himself was beginning to understand that he no longer had the right to tell me off।
लेकिन वो जो है वो ये बात भूल जाता था कि अब उसके पास कोई राइट बाकी नहीं रहा है कि वो मुझे इस तरीके से डांटे। My independence grew. I began to take unfair advantage of his toleration. I found a new pleasure in flying kites and spent all my time at the sport. Still, I minded my manners with my brother and concealed my kite flying from him. और इस तरीके से वो ये कहता है कि मुझे अब जो है मेरी आज़ादी और बढ़ जाती है और मैंने इस आज़ादी को जो है वो अनफेयर ले लिया, मतलब कि इस आज़ादी का मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और मैं जो हूँ काइट्स फ्लाई करने में मज़ीद खुशी महसूस कर रहा था और मैं अपना सारा वक्त जो है वो स्पोर्ट्स में गुजार रहा था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरे दिल में जो मेरे भाई के लिए एक इज्जत, एक मुकाम था, वो अभी भी बाकी था। Still I minded my manners with my brother. One day far from the hostel, I was running along like mad trying to grab hold of a kite. My eyes were on the heavens and that high flying travelers in the skies. A whole army of boys came racing out to welcome it. Nobody was aware who was in front or at the back of him. It was as though every one of them was flying along with that kite. अब यहाँ पे वो जो छोटा भाई है वो ये बता रहा है कि एक दिन हॉस्टल से दूर मैं जो हूँ वो भाग रहा था along like mad, मतलब मैं पागलों की तरह भाग रहा था। Trying to grab hold a kite, मतलब कि पतंग को उड़ाते हुए पतंग को पकड़ के भाग रहा था। My eyes were on the heavens and that high flying travelers in the skies, और उसकी आंखें जो हैं वो मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो स्काई पर थी। A whole army of boys came racing out to welcome it, और एक जो है वो आर्मी बॉयज़ की एक आर्मी आई उससे रेस करने के लिए। Nobody was aware who was in front or at the back of him. It was as though every one of them was flying along with that kites. और वहाँ पर जो सब जो है इस रेस में कॉम्पिटिटिव थे वो इतना ज़्यादा जो है वो काइट फ्लाई करने में बिजी थे कि उनको ये तक ना पता था कि उनके आगे पीछे कौन है, क्या चल रहा है। वो इतना जो है वो मसरूफ थे, उनकी नज़रें मुसलसल स्काई की तरफ काइट उड़ाने में थी। Suddenly I collided with my brother, who was probably returning from the market. और अचानक से जो है वो ये कहता है कि मैं अपने भाई से टकराया जो कि मार्केट से वापस आ रहा था। He grabbed my hand and said angrily. उसने मेरा हाथ पकड़ा। Grab means कि उसने मेरा हाथ पकड़ने को कहते हैं, and said angrily, और उसने गुस्से से कहा, Are not you ashamed to be running with these ragamuffins after 5 rupees kites? वो उसको ये कहता है कि तुम्हें यहाँ इस तरीके से मुफलिसों की तरह, रैगामफिन्स मतलब होता है मुफलिसों की तरह भागते हुए शर्म नहीं आ रही इस 5 रुपए की काइट के पीछे। Have you forgotten that you are not in a low grade anymore? और तुम क्या ये भूल गए हो कि अब तुम एक लो ग्रेड मतलब के कम दर्जे पर, मतलब के एक छोटी क्लास में नहीं हो। I am sorry to see you have so little sense. You are smart, but what use is it if it destroys your self-respect? You must have assumed I am just one grade behind my brother, so now he doesn't have any right to say anything to me. इसके बाद जो छोटा भाई है वो ये कहता है, I am sorry to see you have so little sense. वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी इस सोच पर जो है वो काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है। You are smart, but what use is it if it destroys your self respect? तुम स्मार्ट हो लेकिन इतना स्मार्ट होने का क्या फ़ायदा अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। You must have assumed, और तुमने ये देखा है, I am just one grade behind, कि मैं तुमसे जो हूँ बस अब एक ग्रेड जो हूँ वो पीछे हूँ। My brother, so now he doesn't have any right to say anything to me. अब तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे इस तरीके से मना करो, इस तरीके से रोको। But you are mistaken. I am 5 years older than you and that difference us cannot be removed. अब जो है इस बात पे उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ and that difference between us cannot be removed. और ये डिफरेंस हमारे बीच जो है वो कभी भी कोई नहीं मिटा सकता। So students, here you have seen that how younger brother
answered his elder brother, and it was really disappointed, because we should not behave with our elders like that. Now students, we will stop our explanation till here, till removed. Now we will continue our explanation in the next session, because the time has been ended. If you have any confusion regarding this session, then you can ask me in your query time. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.